भाई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हालचाल है? फर्स्ट क्लास। न्यूक्लियस का लेक्चर नंबर 1 जेई नीट। ओके, बेसिक बहुत ही फर्स्ट क्लास चीज है न्यूक्लियस। कुछ नॉर्मल फॉर्मूले और कुछ नॉर्मल चीजें आपने आई एम श्योर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, शायद स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा होगा। सो दिस नथिंग न्यू, जस्ट सम न्यू फॉर्मूले, द वेज टू यूज देम, दैट इज व्हाट इज न्यू। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नो एन एटम, you know an element can be represented as, I'm starting from pretty basic, you know, ZXA, or you might also write it as ZXA. Here X is the symbol of the element, Z is what you call atomic number, and A is what is mass number. So X is the element symbol, nothing new. Z is called atomic number, and I'm sure you already know atomic number means the number of protons inside the nucleus or the number of electrons revolving around the nucleus. So number of protons inside nucleus or number of electrons. And A is mass number. Sometime back you used to call it atomic mass number, but बात तो वही है, mass number. Mass number represents the total number of protons plus neutrons. Protons and neutrons inside the nucleus. So mass number represents total number of protons plus neutrons जो nucleus के अंदर हैं. So somebody someday, if they ask you find the number of neutrons contained in this particular element, then it is as simple: total number of protons plus neutrons minus number of protons will give you number of neutrons. So number of neutrons in this element is mass number minus atomic number. N is equal to A minus Z. Okay. Now remember the total number of particles. You know the particles inside the nucleus, protons and neutrons, and they are called nucleons. The particles inside the nucleus are called nucleons. इसलिए हम अक्सर जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल हैं वो प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स, इससे कोई फर्क नहीं है, बस उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. ओके, लेट मी टेल यू अ कपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, यू ऑलरेडी नो दैट. द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस is करीबन 10 raised to minus 15 meter, and 10 raised to minus 15 meter is called Fermi. So 1 Fermi is 10 raised to minus 15 meter. So it's of the size of Fermi. Size of atom you already know is 10 raised to minus 10 meter, करीबन करीबन. ओके, फिर एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन देने जा रहा हूं. If somebody asks you to find the radius of the nucleus, the radius of the nucleus is, it's a very beautiful equation out here. R is RO A raised to 1 by 3. I hope you are jotting these important things down in your notebook. जैसे number of neutrons, N is A minus Z. Radius of the nucleus, R is equal to RO A raised to 1 by 3. Now RO is a constant. I hope you can see this below, this much below. Is it visible? Okay. Yes, sir. And RO is a constant जिसकी वैल्यू है करीबन 1.1 से 1.3 FM. FM मतलब फेम्टोमीटर या फर्मी. Okay, you can also write it as FM. ये जो 10 is to minus 15 मीटर है ना, इसको 1 FM कहते हैं. Okay, फेम्टोमीटर. So 1.1 फर्मी के आसपास उसकी वैल्यू है. And A is mass number, you already know this.
So R is equal to RO A raised to 1 by 3 cube root of mass number. This is the equation for the size of the radius of the nucleus. I am going to take this off now. Agreeable? देख लो एक second. Okay. अच्छा. Now there can be various types of elements. I am just classifying them into three main types. There are four, and you can classify into many other types also. I'm sure you've heard the names. I'm just giving a brush up. Types of elements. The first type is isotopes. Isotopes are elements which have the same atomic number but different mass numbers. So same atomic number but different mass numbers. अब एटॉमिक नंबर सेम है तो उसका जो पीरियोडिक टेबल में जगह है वो तो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेट मी गिव एन एग्जांपल. आई एम श्योर यू नो द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. 1H1, 1H2, this is called heavy hydrogen, deuterium, and 1H3, tritium. I'm sure you know this. 1H1, 1H2, 1H3. आपने देखा एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर्स अलग हो गए. एक और एग्जांपल है यूरेनियम का. 92 यूरेनियम 235, 92 uranium 238. There is another 92 uranium 236 also, but that is not freely available in nature. तो इन दोनों का, यूरेनियम का भी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग हो गया. ओके, सो दीज आर आइसोटोप्स. द सेकेंड इज आइसोबार्स. आइसोबार्स, बार मतलब मास नंबर. सो सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स. अब डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स है तो इसका मतलब एलिमेंट्स भी अलग अलग होंगी. ऑफ चांस मेरे को याद नहीं आ रहा है. मेरे को एक याद आ रहा है. आई थिंक कार्बन 6C14 7N14. नाइट्रोजन, ये एक इट्स नॉट अ फ्रीली अवेलेबल कार्बन, इट्स रेडियो एक्टिव कार्बन. 6C14 ये नाइट्रोजन है. 7N14. कैन यू सी उनके एटॉमिक नंबर्स अलग अलग है बट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियॉन्स, द मास नंबर इज सेम. द नेक्स्ट इज आइसोटोन. टोन ना मतलब न्यूट्रॉन. मैं इस तरह याद रखता हूं. याद रखने के तरीके बहुत जरूरी है, नहीं तो हालत खराब हो जाती है. इतना सारा दिमाग में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आई एम श्योर विद द राइट टूल्स we can manage nearly everything, almost. So तीसरा कौन है भाई? आइसोटोन्स. एंड टोना, ना मतलब न्यूट्रॉन्स. सो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर but same number of neutrons. अर्थात उनका Z अलग है, A अलग है, but A minus Z is same. So different Z, different A, but A minus Z, that was N, is same. मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम्पल की. आई एम श्योर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन एनी रेफरेंस बुक दैट यू वांट. ऑफ चांस आई डोंट रिकॉल एनी एग्जाम्पल. सो दीज आर आइसोटोन्स. ओके, मैं कैरेक्टरिस्टिक में एक और बताना भूल गया कि द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to 17 kg per meter cube. आपको याद है पानी की डेंसिटी इज 10 raised to 3 kg per meter cube. न्यूक्लियस की डेंसिटी है 10 raised to 17. एंड इफ यू आर सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डेंसिटी, देन डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. मास
पूरे न्यूक्लियस का, सपोज न्यूक्लियस में ए पार्टिकल्स है, ए यू नो दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ए द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m इज द मास ऑफ ईच पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, मास नियरली सेम होता है, अपॉन वॉल्यूम, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल जिसका रेडियस है r, so it is 4/3 pi r cube. Don't worry, we are not going to fall into the trap of calculating things and stuff. So density is mass upon volume, total mass number, total number of particles inside the nucleus into mass of each particle, that is A into m, and upon volume, since it's a sphere, the volume of a sphere is 4/3 pi r cube, where r is the radius of the nucleus. So this is it. Just jot these down, we'll move on. Okay. Pretty standard stuff, you know, I'm sure you know everything. अब मास ऑफ प्रोटॉन, यू नो न्यूट्रॉन वगैरह जो है बहुत छोटे हैं, यू नो केजी में डिनोट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इससे अच्छा है हम कुछ ऐसा मास डिसाइड करें जो रिप्रेजेंट करने में काफी आसान हो. सो हम डिसाइड करते हैं विच इज कॉल्ड 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट. वैसे डॉट डॉट लगाए पर डॉट नहीं होते, 1 AMU या AMU, और 1 यूनिट, U मतलब यूनिट. इट इज डिफाइंड एज द 1/12th part of the mass of an unexcited carbon 12 atom is called 1U. and you know U मतलब unified atomic unit, बरोबर, तो 1 यूनिट भी कह सकते हो. 1 यूनिट is equal to करीबन 1.66 into 10 raised to -27 kg. Okay, 1 unit or 1 AMU is 1.66 into 10 raised to -27 kg. बहुत बड़ा बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हम इसको 1 यूनिट का नाम देते हैं. 1.66 10 raised to -27 kg. And now मॉडर्न फिजिक्स हो और आइंस्टाइन ना आए, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. आइंस्टाइन gave us an equation which is no doubt, undoubtedly the most famous equation of Einstein. Einstein का नाम आया मतलब E is equal to mc square आया. Anybody knows what this equation suggests? What this equation says? Anybody? सर अगर कोई मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी. Very good. So if mass m of a substance is converted into energy, it gives E is equal to mc square amount of energy, where here c is the speed of light in vacuum, which is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay, so 3 into 10 raised to 8 meter per second c की वैल्यू. अच्छा एक काम करते हैं, m की जगह 1 यूनिट डालते हैं एंड c की जगह 3 into 10 raised to 8 डालते हैं. If mass is taken as 1 unit, which is 1.66 into 10 raised to -27 kg, and then energy is E is equal to mc square, mass की जगह 1.66 into 10 raised to -27, c is 3 into 10 raised to 8 का square. Don't worry, I will not calculate, I will give you a final answer. This is करीबन equal to, अब इसको, ये बहुत छोटा यूनिट है तो ये जूल में जो आएगा उसको मैं ईवी में कन्वर्ट करता हूं, एंड दिस इज करीबन 931 MeV. So a very important idea I'm going to tell you. 1 unit of mass is equivalent to 931 MeV of energy. I would suggest you write this down please. 1 यूनिट ऑफ मास, अब इतना छोटा मास 1 यूनिट कितनी एनर्जी दे सकता है हमको? 931 MeV. वैसे आज तक ये कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम इतने छोटे मासेस की तक पहुंचे ही नहीं कभी. आज पहुंचे हैं तो 1 यूनिट ऑफ मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा मींस 10 raised to 6.
mega electron volt of energy. Please jot this down and we go forward. And now in going forward, this and this, okay? I'm not going to use this today. This is just a brief brush that you might have had. You already know this. Nothing new. Acha, we are going to talk about radioactivity. Today's main important topic is radioactivity. What is radioactivity? तुम जब रेडियो चालू करते हो और गाना बजता है तो ये रेडियो की एक्टिविटी हुई. That is why it is called radioactivity, isn't it? कि नो? क्या मजाक कर रहे हो सर? नहीं सर. अच्छा, तो क्या होती है यार? बड़ा ही अचरजपूर्ण नाम है रेडियो एक्टिविटी. क्या होता है? रेडियो एक्टिव चीजें क्या होती हैं? रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? आओ बात करें. रेडियो एक्टिविटी बरोबर, स्पेलिंग तो बरोबर है ना. You know, majority of the elements, you know, which have atomic number greater than 83. Some elements which have very small atomic numbers also. These elements are not entirely stable. मैं बड़ी elements की बात करता हूं. Z greater than 83. These elements are not stable. ये जो ना दुनिया में हर चीज को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी. एलिमेंट्स को भी स्टेबल बनना है. तो वो क्या करते हैं? वो जो बड़ी बड़ी एलिमेंट्स होता है, यूरेनियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, दीज एलिमेंट्स emit from themselves radiations. Briefly, alpha, beta and gamma radiations वो अपने में से निकालते हैं. This phenomenon is called radioactivity. So large elements, अब ये large elements मतलब having Z greater than 83 are not stable. These, they become stable, they try to become stable by emitting radiations from themselves. This phenomenon is called radioactivity. Dev Desai, you aware of this stuff? Yes sir. ओके, दो टाइप की एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी देखी गई है. एक तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यू नो, इन विच वी डोंट इंटरफियर. जैसे यूरेनियम इज ऑल्सो नेचुरली रेडियो एक्टिव एंड बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है उसका, तो वो अपने आप निकालता है अपने में से, हमारा कोई हाथ नहीं है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. सो दिस वाज ऑब्जर्व्ड in 1896 by Becquerel, Henry Becquerel, Becquerel. He observed radiations coming out from big elements and he called it natural radioactivity. पर फिर हमको जब पता चल गया तो हम भी शांति से बैठने वाले थोड़ी है. हमने भी उंगली करना शुरू किया. जब हम किसी एलिमेंट के साथ कुछ ऐसा करते हैं और उसको रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकालने पे मजबूर करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी. एटम बॉम्ब बनाने में, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का ही काम होता है. सो दिस इज मैन मेड. वी डू समथिंग that makes the element emit radioactive radiations, so that is artificial radioactivity. Don't worry, we are not discussing this in detail, you know, this will discuss in detail in the theoretical ideas. Okay, now सबसे important है, तीन टाइप के radiations है. Types of radioactive radiations. I am not going to discuss this also too much. The first is alpha rays. You can call it alpha particles या beta alpha rays or alpha particles. You can alpha decay. You know, जब कोई element emits an alpha particle are helium nucleus.
and 2,4He. So जब भी कोई एलिमेंट we call them parent element, parent nucleus, एंड जो बनता है उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस. इसमें फादर या सन नहीं होता, बराबर. तो इट्स लाइक दैट. तो अगर कोई एलिमेंट, द बेस्ट एग्जांपल इज 92 यूरेनियम 238. 92 यूरेनियम 238 decays and forms 90 थोरियम, ये थोरियम है, 234 along with the release of a beta particle. Did you observe the reaction? 92 uranium 238 बन गया 90 thorium 234, साथ में 24He. यह है आपका अल्फा पार्टिकल. This is the parent nucleus and this is your daughter nucleus. Okay, did you match the atomic numbers? On the left hand side atomic number is 92, on the right hand side 90 plus 2 92 मैच हो गया. मास नंबर 238, यहां पे 234 plus 4 238 मैच हो गए दोनों. So in a general case, in a general equation, I write that if there is an element X having atomic number Z, mass number A, and it would emit an alpha particle 24He, then एलिमेंट, आपने देखा एलिमेंट चेंज हो गई पूरी. तो X की जगह बन जाएगा Y एंड एटॉमिक नंबर कितने से डिक्रीज हो जाएगा? ये 92 था, ये 90 है, कितने से डिक्रीज हुआ? 2 से. एंड मास नंबर कितने से डिक्रीज हुआ? ये 238 है, ये 234 है, 4 से. सो दिस बिकम्स A minus 4. This is called the general equation for alpha decay. So if a radioactive element emits an alpha particle, then the new element, the daughter element, will have atomic number decreased by 2 and mass number decreased by 4. This is the general equation for alpha. Kindly jot it down. We then go on to beta emission. बीटा एमिशन, बेटा एमिशन नहीं होता है, बीटा एमिशन होता है. एंड बीटा एमिशन जो है उसमें 2 टाइप के पार्टिकल्स पॉसिबल हैं, या तो नेगेटिव बीटा एंड या तो पॉजिटिव बीटा. नेगेटिव बीटा इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव बीटा मींस पॉजिट्रॉन. ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट इट. ओके, एज आई सेड, बीटा में 2 प्रकार के होते हैं, नेगेटिव बीटा, पॉजिटिव बीटा. पहले नेगेटिव बीटा की बात करें. फर्स्ट केस, बीटा माइनस पार्टिकल. मतलब क्या होता है बीटा माइनस? मतलब इट्स एन इलेक्ट्रॉन. सो इफ आई वर टू गिव यू अ जनरल इक्वेशन फॉर दैट, नाउ दिस इज जस्ट एन इक्वेशन, डोंट टेक इट टू सीरियसली. थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स विल डिस्कस लेटर. सो इफ एन एलिमेंट, लेट अस कॉल इट X, Z, A, emits a negative beta particle. Negative beta particle मतलब इलेक्ट्रॉन, -1 E0. Then जो नई एलिमेंट बनेगी, कैन यू एस्टिमेट, अब ये आपने देख लिया है तो यहां पे आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि या ये नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा जी? Z+1. बिल्कुल सही जवाब, Z+1. मास नंबर में कोई फर्क नहीं, तो मास नंबर रिमेन्स सेम. अच्छा, दिस यू डोंट नो, जस्ट टेक इट एज एन आइडिया. व्हेन नेगेटिव बीटा पार्टिकल आता है तो साथ में एक दूसरा एक और अनचार्ज पार्टिकल एमिट होता है. दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. ओके, जस्ट टेक इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूं. ये है आपका नेगेटिव बीटा पार्टिकल एंड ये है एंटी न्यूट्रिनो. तो दिस इज नेगेटिव बीटा एमिशन. फिर आता है पॉजिटिव बीटा. बीटा पॉजिटिव भी होता है, क्या बात है. एंड दिस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इज कॉल्ड अ पॉजिट्रॉन. this positron is an anti particle of electron. Same mass,
उल्टा चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन है -1 e0, तो पॉजिट्रॉन का क्या होगा, +1 e0, सो दैट इज अ पॉजिट्रॉन। एंड मैं फिर से जनरल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, XZA, पेरेंट एलिमेंट फटा एलिमेंट, निकला डॉटर, सो +1 e0 ये नेगेटिव पॉजिटिव बीटा पार्टिकल या पॉजिट्रॉन, एंड उसके साथ निकलता है जिसे कहते हैं न्यूट्रिनो। तो अब जो ये डॉटर एलिमेंट बनेगी वो क्या बनेगी, Z-1 atomic number, mass number remains same. So this was the idea of beta emission, and ये है positive beta particle, positron, and this is called neutrino. Okay, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का प्रिडिक्शन पाउली ने किया था, वुल्फगैंग पाउली, आई थिंक 1930 के आसपास किया था। 1930 से लेकर 30, you know, they were experimentally confirmed in 1957. Can you imagine that? So many years after Pauli died, we finally said yes, neutrino, anti-neutrino, you know, निकलते हैं, and it's a reality. Wolfgang Pauli सही कह रहे थे, पर क्योंकि पाउली के पास कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, तो his idea remained a hypothesis till 1957 where they were confirmed. Okay, so this is beta emission. And finally, अब जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये बीटा पार्टिकल है, गामा कोई पार्टिकल नहीं है, गामा इज अ रे, एंड यू ऑलरेडी नो सिंस यू डन रेडियो एक्टिविटी, अपना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड ऑल दैट, गामा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट ये इक्वेशन तो रखता हूं, बाकी बोले सब कुछ उड़ा दूं। सो गामा रेडिएशंस, नंबर 3, गामा डीके नहीं होता, गामा एमिशन होता है। अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है, पर गामा एमिशन होता है। सो दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये सर निकलते कब है, यू नो, जब भी अल्फा एमिशन होता है या बीटा एमिशन होता है, यू नो, द डॉटर न्यूक्लियस, द डॉटर एलिमेंट इज इन अ हाईली एक्साइटेड स्टेट. Nothing can stay in an excited state forever. So when the daughter nucleus comes down to the ground state, it comes by emitting इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बोर की थियरी में देखा था हमने कि जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, इट एमिट्स फोटॉन्स, सेम आइडिया, बट ये न्यूक्लियस के केस में, दैट वाज इन द केस ऑफ एटम्स। एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस which are released during alpha decay और बीटा एंड बीटा डीके, अल्फा डीके बीटा डीके दोनों के साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं। दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी, हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज गामा एमिशन। नाउ लेट्स गो ऑन टू समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज टुडे। आर यू देयर? I hope you're there. Okay. Yes, sir. All right. I was just suddenly taken by surprise. You still there or not? Okay. So what I'm going to do, and जिसके numericals आज solve करेंगे, that is called the law of radioactive decay. Ever heard this name, law of radioactive decay? Ever heard a formula called n is equal to n0 e raised to minus lambda t? I think you have. Have you? शायद मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा तब आप पहचान लोगे, हाँ पहचाना, पहचान कौन, ये तो मैं पहचान लिया हूं। सो लॉ ऑफ डीके। ओके, जैसे मैंने कहा, यू नो, बड़ी एलिमेंट्स होती है, दे एमिट रेडिएशंस एंड एज अ रिजल्ट उनका डीके होता चला जाता है, निकलता है, बेचारा छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, कम 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 होता जाता है। सो दिस इज कॉल्ड डीके प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। नाउ इफ देर आर, इफ डेल्टा एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके
इन टाइम डेल्टा टी। ध्यान से देखिएगा, मैं एक्चुअली डिराइव कर रहा हूं ये डीके आपके लिए, डीके का लॉ। डेल्टा एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे आर डीकेइंग, मतलब कम हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, पेरिश हो रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी, देन rate of decay, I am defining a new term, is defined as delta n by delta t. So rate of decay is called R and it is equal to minus delta n by delta t. Anybody can tell me why I have introduced this minus here? Yeah. Okay, so I was saying I have written R is equal to minus delta n by delta t. Why is there a minus here? Because डेल्टा एन डिक्रीज करते रहेगा। वेरी गुड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटते जा रहे हैं। वेरी नाइस, नेगेटिव साइन, एज विथ इंक्रीज इन टाइम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, number of nuclei decreases. That is why this signifies the decrease. So delta n by delta t, and taking limit delta t tending to 0, we get, जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट इक्वेशन लेडीज एंड जेंटलमैन, रेट ऑफ डीके, या जिसे हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं, एक्टिविटी इज R is equal to minus dn by dt. Wow, lovely equation number 1, R is equal to minus dn by dt. अच्छा, experimentally it is seen that ये जो minus dn by dt है ना, is proportional to original number of nuclei. You know, जितना ओरिजिनल नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज्यादा है तो डीके फास्ट होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियाई कम होते जाएंगे डीके का रेट, एक्टिविटी भी कम होती जाएगी। सो माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन। लेट्स इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट्स अ पहचान कौन मोमेंट। माइनस डी एन बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एन था, इज इक्वल टू लैम्बडा एन कर दिया है। लैम्बडा, लवली इक्वेशन लैम्बडा। ये लैम्बडा क्या है? लैम्बडा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट? एसआई यूनिट ऑफ लैम्बडा इज टाइम इनवर्स। यू नो, अब जैसे ये डीएन और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कट गए तो लैम्बडा का 1 टाइम हो गया, तो इस सेकेंड इनवर्स और मिनट इनवर्स और ईयर इनवर्स। टाइम इनवर्स ही होता है इसका लैम्बडा का डीके कांस्टेंट, या तो सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या ईयर इनवर्स। अच्छा, अब क्योंकि एक्टिविटी की बात चली गई तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी भी ले लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज 3 है, या तो बेकरेल, अब ये पूरा लिखने में तो परिस्थितियां गंभीर होंगी, BEC QUEREL बेकरेल, या क्यूरी CI, और रदरफोर्ड RD। मैं आपको वैल्यूज भी बता देता हूं। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? द लॉ ऑफ डीके का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें डीके का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। 1 becquerel blue, we'll write in blue, 1 becquerel is equal to 1 डीके पर सेकेंड। जब एक डीके, एक न्यूक्लियाई डीके होता है 1 सेकेंड में, तो इट इज कॉल्ड एन एक्टिविटी ऑफ 1 becquerel। 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10 raised to 10 becquerel, मतलब 3.7 इंटू 10 raised to 10 decays per second. And 1 Rutherford is 10 raised to 6 becquerel. I am absolutely anticipating that you will jot this down. Okay, ఒకటి రెండు and మూడు. Okay, okay. Hey भाई, minus dn by dt कौन है? R है ना? So also बहुत ही lovely equation रखी टिकी, R is lambda n. Okay, बहुत ही इस्तेमाल किया जाएगा, घबराए नहीं, बहुत ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, ऑलराइट। सो ये 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। R is minus dn by dt,
minus dn by dt is lambda n, and इन दोनों को मिक्सर करके r is equal to lambda n. अच्छा, from equation 2, do you agree we can write, ये n नीचे ले लूं, ये dt ऊपर ले लूं, minus dn by n is lambda dt, or dn by n is minus lambda dt, and let me integrate both sides. Integrating both sides, I'm taking this side off now. एंड इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा हमको, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर टुडे, जिसको काफी इस्तेमाल किया जाएगा. लेट्स सी हाउ मच वी कैन वर्क दिस आउट. सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा. इंटीग्रल dn by n इज माइनस लैम्बडा इंटीग्रल dt. लैम्बडा तो कांस्टेंट है. जब टाइम 0 था, इनिशियल टाइम था, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे? लेट अस से n0. दिस इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई. एंड एट टाइम t इक्वल टू t, let the number of nuclei remaining be called n. So my limits are set now. Time 0 है, number of nuclei no है. Time t है, number of nuclei n है. And integral dx by x is natural log x. So natural log n from no to n minus lambda, and integral dt is t. Let's have some t. So पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, नेचुरल लॉग n माइनस नेचुरल लॉग no is minus lambda t minus 0. Log a minus log b is log a by b, so natural log n by no is minus lambda t, and let me take natural log this side, so I get n by no is e raised to minus lambda t. I hope you know the formulae for logs and stuff like that. So n is no e raised to minus lambda t. Ladies and gentlemen, the most important equation of this session is right on the board now. N is no e raised to minus lambda t. I think you've seen this in chemistry someday. Have you? Or no? बिल्कुल बिल्कुल. This is an exponential idea. I'm taking this. Lovely. So n is equal to no e raised to minus lambda t. So here now it's important that you understand no is initial number of nuclei, and n, you know, majority लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये n मतलब बचे हुए न्यूक्लियाई या उड़े हुए न्यूक्लियाई. तो n is the number of nuclei remaining, बचे हुए, at time t. टाइम t पे कितने न्यूक्लियाई बचे हुए हैं, that is what your n is, and this is your exponential curve. You know, ये टाइम बढ़ता जा रहा है, ये n है. Oh my god, this is an exponential curve. e raised to minus lambda, ये e raised to minus में है, minus indicates exponential decrease. बराबर, not a very good graph actually. I should have made it exponential. हाँ, अब ये ठीक है. So this is e raised to minus lambda t. Similarly, I have an equation for activity also, same lines. ये number of particles का है, ये activity का है. R is Rho e raised to minus lambda t, where Rho is initial activity at time t equal to 0, and R is the activity at time t. जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है एक्टिविटी घटती जाती है. सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसा है, एट टाइम t इक्वल टू 0 n0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, t पे इतने पार्टिकल बचे हुए हैं. उसी तरह एट t इक्वल टू 0 एक्टिविटीज R, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो एक्टिविटी भी बढ़ी है. एट टाइम t नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट चुके हैं तो एक्टिविटी भी घट चुकी है. आई वॉन्ट यू टू राइट बोथ दीज इक्वेशंस डाउन. लेट्स गो. ओके, एंड I'm going to give you two important terms. Actually एक ही important है, बाकी दूसरी तो एम ही है. One is called half life time
and the other is mean lifetime, yeah, average lifetime. I'm sure you've heard of these terms. So, number one, we call it half lifetime. You can call it T half or tau half, whatever you want. आपको जो अच्छा लगे. Now, what is half-life? The time in which the number of particles becomes half of the initial number of particles. The time in which number of particles becomes half of initial number of particles is called half-life. मतलब 10 पार्टिकल थे और 5 अब हो गए, कितना टाइम लगा उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ. 10 से 5 हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ. एंड टी हाफ मैं डिराइव नहीं करूंगा इसको. टी हाफ इज 0.693 बाय लैम्बडा. मस्त इक्वेशन, बराबर. टी हाफ इज 0.693 बाय लैम्बडा. द सेकेंड इज मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, एंड उसको टी कहते हैं, टाउ भी कहते हैं. So, how do you define mean life? The time in which the number of particles becomes 1 by E times. E याद है? E 2.71828. So, 1 by E times मतलब 0.37 times the initial number of particles. Charging, discharging of capacitor, inductor वगैरह में E आता था बहुत. The initial number of particles is called mean lifetime. And T, इसका mean life का equation T is 1 by lambda. It's the reciprocal of lambda. Alright, so these are equations for T half 0.693 by lambda. हम इनका derivation theoretically में करेंगे. And mean lifetime T is 1 by lambda. यहाँ पे particles becomes 50% and यहाँ पे particles becomes 37%. Alright, so this is the difference between this. ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, so please jot this down. Quite important. Okay, अच्छा, अब काम करना शुरू करते हैं, इनको यूज करना शुरू करते हैं. That is a very really interesting idea कि सर यूज करना है. ओके, यूज तो कर लेंगे, पर ये n इज इक्वल टू NO e रेस टू माइनस लैम्बडा t वगैरह जब सॉल्व करने का आता ना, तो वी नीड लॉग्स ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. लॉग्स मतलब लकड़े नहीं, लॉगरिथम्स. एंड इन ऑर्डर टू यूज लॉग्स, जब तुमको नेचुरल लॉग फाइंड करना है, आई एम श्योर यू नो नेचुरल लॉग x इज 2.303 टाइम्स लॉग x टू द बेस 10. मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूं यहां पे. डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. अच्छा, कोई इक्वेशन ऐसा जो माइंड में नहीं बैठा कि ये क्या है, ये क्या नहीं है सर? कोई लफड़ा? अच्छा, तो मैं यहां पे राइट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे, आई एम गोना राइट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. द फर्स्ट बीइंग नेचुरल लॉग x. दिस लॉग x टू द बेस e इज, ये ln अच्छा नहीं लगा, 2.303. मैं नॉट 3 को उड़ा देता हूं. Log x to the base 10. Then log a plus log b is log ab. Log a minus log b is log a by b. याद रहे. नेचुरल लॉग a रेस टू b, तो b आगे जंप कर जाएगा, b नेचुरल लॉग a. और कुछ, अब मुझे लगता है कुछ लॉगरिथम्स दे देने चाहिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम लीजिए और लॉगरिथम का नाम लीजिए. आई एम श्योर यू नो. log 2, log 1 is 0 0 0. ओके, log 2 याद है किसी को? 0.3010. log 3 0.4771. log 4 इतने में नीचे तक आएगा.
0.6021, आपको इनिशियल 2 ही याद रहेंगे तो भी बहुत है. log 5.6990, log 6 anybody 0.7781, पर 77 याद रहे तो भी बहुत है. log 7 जगह देख लेता हूं, log 8, log 9, ये टेढ़ा हो गया नहीं सर बरोबर है. ये 77, log 7 0.8451, log 8 0.9 and log 9 0.95. अब ये प्रश्न अगर आप मेरे को इस वक्त पूछ रहे हैं कि सर इसको याद रखने का है क्या, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन. क्योंकि ये हवन अगरबत्ती करने के लिए तो लिखा नहीं है, ये अपने को यूज करने का इसलिए लिखा है. डोंट वरी, मैं इसको यहीं पे प्रस्थापित रखूंगा. बराबर, इसकी स्थापना यहां हो गई है, मैं इसको यहीं रखूंगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर आ गए सारे के सारे. इज दिस अग्रीएबल? आपको यहां तक दिख रहा है ना, log 9 तक? वेरी गुड. बस तो इसको यहीं रखा जाएगा. एंड नाउ आई एम प्रोसीडिंग ऑन टू सॉल्विंग सर्टेन न्यूमेरिकल्स. तो भाई अपनी अरिहंत मास्टर रिसोर्स बुक खोल लीजिए. लेट अस सी कितने होते हैं, क्या होते हैं करके. SP15, द नेम इज SP15. सैंपल प्रॉब्लम 15 क्या कहता है? एट टाइम t इक्वल टू 0, activity of a radioactive substance is 1600 becquerel. Activity R0 is 1600 becquerel. ये initial activity at time t equal to 0. And at t equal to 8 second, t equal to 8 second कितनी activity हो जाती है? 100 becquerel. Wow. And कहा गया है find the activity at 2 second. भाई इसको करने के जो है 2 तरीके हैं. पहला तरीका R, दो केस ले लूं. पहले केस में R इज इक्वल टू RO e रेज टू माइनस लैम्बडा टी करके, मेरे पास R है, RO है, टाइम है, तो लैम्बडा फाइंड करूं. और दूसरे केस में R डैश इज इक्वल टू RO e रेज टू माइनस लैम्बडा टी डैश. मेरे पास लैम्बडा मिल जाने से वो काम आसान हो जाएगा. दूसरा एक अनकन्वेंशनल रूट है, बाकी में तो करना ही है. अनकन्वेंशनल रूट क्या है, जरा ध्यान से. मेरा इनिशियल एक्टिविटी कितना था? 1600 becquerel. एक हाफ लाइफ चली गई, कितनी एक्टिविटी हो जानी है? व्हाट इज हाफ लाइफ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स हाफ, एक्टिविटी ऑल्सो बिकम्स हाफ. सो इन वन हाफ लाइफ कितनी एक्टिविटी? 1600 से कितनी हो गई? 800. अब 800 से एक और हाफ लाइफ चली गई तो कितनी एक्टिविटी रह गई? 800 का आधा, 400. एक और हाफ लाइफ चली गई, 400 का आधा. आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? मैं 1600 becquerel से शुरू किया, एक हाफ लाइफ में 1600 का आधा 800 हो गया. फिर 800 से शुरू किया, एक और हाफ लाइफ गया, 800 का आधा हो गया 400. फिर 400 से एक और हाफ लाइफ गया, 400 का आधा हो गया 200. और एक और हाफ लाइफ जाने के बाद कितना हो जाएगा एक्टिविटी? 100 becquerel एक्टिविटी. आपने देखा मेरे इनिशियल 2 क्या थे? 1600 एंड 100. 1600 से 100 आने में कितनी हाफ लाइफ गई श्रीमान? 1 2 3 4. So it takes 4 half lives to go from 1600 becquerel to 100 becquerel and 4 half lives. एंड उन्होंने मेरे को बोला है 1600 से 100 कितने टाइम में आया? 8 सेकेंड है ना. 1600 से 100, दिस इज एट टाइम t इक्वल टू 0. तो 1600 से 100 आने में कितना टाइम लगा? 8. ओ देयरफॉर 4t हाफ इज इक्वल टू 8 सेकेंड. वाह वाह. तो t हाफ कितना महाराज? 8/4, 2 सेकेंड. क्या अब आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है ये क्या हुआ?
मैं 1600 से शुरू किया, आधा 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 करता गया। हाँ, कोई मेरे को बोलेगा सर यहाँ पे 100 की जगह कोई और ऑड नंबर होता तो भाई, तो मेरे को r इज इक्वल टू आर ओ ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी करके ही करना पड़ता, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। पर क्योंकि मैंने 1600 देखा, 100 देखा, मैंने सोचा एक शॉट मार लेते हैं यार, शायद टी हाफ से वर्कआउट हो जाएगा, एंड हो गया। 1600 से 800, 800 से 400, 400 से 200, 200 से 100 आ गया, वाह। और एग्जैक्टली 4 हाफ लाइफ लगी, तो 4 टी हाफ इज 8 सेकंड बताया गया, सो टी हाफ इज इक्वल टू 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में आधा होता है। आपने देखा मुझसे यही पूछा गया है कि 2 सेकंड पे कितनी एक्टिविटी हुई, तो 1600 से टी हाफ मतलब 2 सेकंड में कितना हुआ होगा? 500। 1600 से 2 सेकंड में, क्योंकि टी हाफ 2 सेकंड है, कितना हुआ होगा? 800। सो द एक्टिविटी at t is equal to 2 second is half of initial activity. That is 800 becquerel. You can check the answer if you want to. No problems at all. All right. So, but again I'm saying this. ये मैं इसलिए कर पाया बिकॉज 1600 से आधा 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 करते जाओ तो एक पॉइंट पे मुझे 100 मिलता है। अगर कुछ और नंबर होता तो मुझे वही करना पड़ता जो मैंने आपको पहले बताया। ओके, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड जो मैंने इस्तेमाल किया, और वो तभी हो सकता है जब आपको एक करीबन करीबन आंसर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट, इज दिस अग्रीएबल पीपल? नो प्रॉब्लम सो फार? ओके, अब नेक्स्ट नंबर मैं देख रहा हूं SP19। प्लीज गो ऑन टू SP19 प्लीज। सैंपल प्रॉब्लम 19। मैंने आपको होमवर्क में ऐसे ही कुछ दिए हुए हैं जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस रहेगी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो करके। एंड डोंट वरी, लॉग वाले भी हैं, मजा आएगा लॉग वाले भी सॉल्व करने में। लॉग यही है, सारे हथियार हमने बाजू में ही रखे हैं, तो क्या है जब मन पड़ा तो आर्सेनल में से हथियार निकाल करके सटा सटी घुमा देंगे, और कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ओके, सो लेट अस सी। SP19 is on the way. What does it say? The half-life of 92 uranium-238 undergoing alpha decay is 4.5 into 10 raised to 9 year. T half is 4.5 into 10 raised to 9 year. Okay. The activity चाहिए of 1 gram sample is कितनी? अब हमको क्या मालूम भाई, हमको तो फाइंड आउट करने का। अच्छा सर, अब इसमें क्या r इज इक्वल टू R0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी यूज करेंगे? नहीं, क्योंकि वो तभी यूज हो सकता है जब इनिशियल एक्टिविटी दी हो या ऐसा कुछ दिया हो। यहां पे तो एक्टिविटी मांगी है, तो यहां पे सर क्या यूज करेंगे? एक्टिविटी का एक फॉर्मूला और है, R is lambda n. Have you remembered this formula? I'm sure you jotted this down. R is equal to lambda n, where lambda is the decay constant and n is the number of nuclei या number of atoms. अच्छा, tau half दिया है, मतलब t half दिया है, क्या t half से lambda ला पाना possible है? Because I think I know t half is 0.693 by lambda. Very good. We have. मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, substitution will be the last step of this play. So lambda is 0.693 by t half. I know that. तो ये lambda तो मिल गया, अभी n की बारी है। अच्छा, कौन सी एलिमेंट है श्रीमान 92 यूरेनियम 238? आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दिस मच केमिस्ट्री। जब मैं कहता हूं एलिमेंट इज 92 यूरेनियम 238, इसका मतलब है इन 238 द एटॉमिक मास इज 238 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स इन 238 ग्राम we shall have 1 mole of particles. Isn't that true? So I hope you understand this much chemistry. So
एटॉमिक मास इज 238 ग्राम पर मोल, अर्थात इन 238 ग्राम कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23 न्यूक्लियाई। हमको कितने ग्राम का चाहिए? 1 ग्राम का। सो इन 1 ग्राम कितने होंगे? वील कॉल इट n। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम इज n इज इक्वल टू, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 238। भाई मुझे लगता है शायद आपकी बुक में 238 92 यूरेनियम 238 ठीक से नहीं लिखा गया है ना? कुछ लफड़ा है उसमें। 288 हाँ 238 कीजिए उसको, ऐसा यूरेनियम 288 तो है नहीं कोई। सो मेरे पास लैम्बडा भी आ चुका है, मेरे पास एन भी आ चुका है, तो किस बात की देरी है? आओ दोनों को कढ़ाई में डाल दें। पुट 2 and 3 in 1। अच्छा सर लफड़ा है। क्या लफड़ा? सर ये तो ईयर में दिया हुआ है यार, हमको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। आई एम श्योर यू नो। ऊपर एक ईयर का लिख दूं मैं? You know 1 year is 365 days into 24 hours और हर आवर में 3600 सेकेंड। सो वहां से 1 ईयर चुपके से इक्वेशन दे देता हूं, 3.15 into 10⁻7 सेकेंड। इज दिस वैल्यू विजिबल? 1 ईयर is 3.15 into 10⁻7 सेकेंड। आनंदमय वातावरण हो जाएगा। आप चाहें तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आई डोंट माइंड। सो 1 ईयर इज 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड। तो आई थिंक द टाइम इज नाउ। भाई बड़ा कैलकुलेशन होगा, दिल थाम के बैठिए। लैम्बडा इज 0.693 बाय टी हाफ। आनंद से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, इनटू n। पहले सारे किरदारों को तो लगा देते हैं यहां पे। मैं 6.22 को उड़ा रहा हूं, 6 लिखता हूं मैं, अपॉन 238। एंड नाउ आई एम रेडी टू पुट टी हाफ। आई एम श्योर यू आर ऑल्सो डूइंग दिस इन योर बुक्स। आर यू डूइंग दिस इन योर बुक्स? यस सर। एंड याद रहे, इफ यू वांट, आप एक नजर ऑप्शंस पे मार दीजिए। एक नजर, फिलहाल एक नजर, कैलकुलेशन शुरू करने से पहले एक नजर ऑप्शंस पे मार लो। कैन यू सी ऑप्शंस में जो मेन नंबर्स हैं उनको छोड़ के 10⁻² के पावर में काफी वेरिएशन होता है। आर यू लुकिंग एट इट? सो गेम जीती जाएगी 10⁻² के पावर को सही इवैल्यूएट करते हुए। एज आई ऑलवेज से, टेक केयर ऑफ द 10⁻²s and the 10⁻²s will take care of you. So that is a belief that I share with you. T half 4.5 into, बस 10⁻² में गलती ना कर बैठना बस। ईयर, और ईयर का ये रहा, और ईयर सब्स्टिट्यूट करने में 238 ना भूल जाना। हाँ, इससे पहले कुछ बड़ा करने की जगह छोटा करते हैं। कुछ बड़ा मत करो, छोटा करो। 7 6 42। अक्सर यहां तक पहुंच के लोगों को जल्दी बहुत हो जाती है। आई फॉर वन इंसिस्ट कि यहां आने से स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, काम डाउन। दिस इज द पॉइंट वेर यू हैव टू बिकम रियली केयरफुल, यू हैव टू बिकम रियली पेशेंट। क्योंकि अगर गलती हुई तो अब वो यहां से होगी। अगर यहां तक तुमने बरोबर लिखा है सब कुछ, तो अब यहां से और ज्यादा जेंटल हो जाओ, और ज्यादा रिलैक्स हो जाओ। 9 and 7 इज 16, और यहां से इसका भी 2 उठा लेता हूं तो 16 17 18। याद रखिए, मैंने 9 और 7 16, और यहां से भी 2 उठा लिया है। सो नीचे क्या बचेगा? 4.5 इंटू 3.15 इंटू 2.38 को 2.4 लिखता हूं। पीपल, इज दिस स्टेप अग्रीएबल? ओकेश, क्या लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, अब 23 माइनस 18 कितना हो गया श्रीमान? 5। और ये आंसर डीकेस पर सेकंड में आएगा, बेक्रेल में आएगा, सब सेकंड में ही है। ये 4.2 और ये 4.5।
तो आप चाहो तो सबसे पहली बात एक काम करते, इसको 42 कर दूं, 42 और यहां से एक 10 उड़ा देता हूं तो 10⁴ अपॉन 4.5 इंटू 2.5। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करना शुरू कर सकते हो। 4.5 2 are 9 and 9 plus 2.2, 9 plus 2.2 is how much? 11.2, 11.2 into 3.15, 11.2 into 3.1, how much is that supposed to be? लगभग 34-35 के आसपास। मैं आई एम जस्ट स्नो बॉलिंग हियर, स्पिट बॉलिंग हियर यू कॉल इट, करीबन करीबन 4.5 into 2.4 is करीबन 11.2 के आसपास, एंड 11.2 into 3.1, 11 3s are 33, एंड थोड़ा बहुत इधर उधर करके 35। आप चाहो तो 36 लगा दो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप चाहो वो लगा दो। एंड नाउ 42 by 36 लगभग 1.3 के आसपास, करीबन करीबन। इज दैट एन अग्रीएबल आइडिया? यस सर, 1.3 करीबन। मैं ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं कर रहा हूं। सो एक्टिविटी आंसर को चेक करने का आई थिंक यहां पे एक मस्त वो है, चेक इट आउट। करीबन 1.3 1.2 इंटू 10⁴ बेक्रेल के आसपास आ रहा है आंसर। चेक इट प्लीज। सर 1.23 लवली लवली लवली। आपने देखा, आई डिड नॉट हैव टू, दिस वॉज नॉट अ वेरी बिग इशू फॉर मी। व्हाट वॉज एन इशू फॉर मी वॉज द 10⁻²। और एक बार ये 10⁻4 आ गया, फिर यहाँ पे 1.2 हो या 1.3 हो या 1.4 हो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार ये मेरा 10⁻4 आ गया ना, इसने मेरे को गेम जिता डाला। कैन यू सी दैट? ओके, आई एम ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। लेट्स सी व्हाट इट सेज। एग्जाम्पल नंबर 7, द डिसइंटीग्रेशन रेट मतलब डीके रेट of a certain radioactive sample at any instant is 4750। मैं इसको इनिशियल एक्टिविटी पकड़ सकता हूं। 4750 what? Disintegrations per minute और decays per minute। ओके, पर मिनट में काम काज हो रहा है। 5 minutes later मतलब t is equal to 5 मिनट पे, ये t equal to 0 पे है, एक्टिविटी द रेट बिकम्स 2700 पर मिनट। अच्छा जी, डीके पर मिनट। क्या चाहते हैं लोग? कैलकुलेट डीके कांस्टेंट मतलब लैम्बडा, एंड दूजा हाफ लाइफ टी हाफ। ओके भाई, इसमें तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आर इज इक्वल टू आर ओ ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी ही करना पड़ जाएगा। सो केस 1 वी नो, एंड लैम्बडा आने के बाद ही टी हाफ मिलेगा 0.693 बाय लैम्बडा। सो is this follows from here. I think this is the first time we are using this equation. Wow. So ladies and gentlemen, welcome. R 2700 RO 4750 into e raised to minus lambda, तो lambda है, टाइम कितना है 5, so 5 lambda. Wow. So 2700 upon 4750 is e raised to minus 5 lambda. Let me get rid of minus by paltawing this. So e raised to 5 lambda is 4750 over 2700. Okay, ये 1 में खा जाना, जगह का तंगी हो जाना है, पर क्या करें। So this is 475 by 270। क्या ये 3 से जाएगा? नहीं, 3 से तो नहीं जाएगा। और क्या ऑप्शन है हमारे पास? 13 से जाएगा, 13.5 से। 5 से जाएगा। 5 से तो जाएगा ही, वो तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, 5 से तो जाएगा ही। तो 5 से अगर जाएगा 5 9s are 45 and 5 5s are 25 upon 5 5s are 25 and 5 4s are 20। ये ठीक है? इज दिस ओके? बरोबर है ना? 95, ये इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना? बरोबर है ना सब कुछ? हाँ। और मुझे भाई ये e raised to 5 लैम्बडा है, तो अपने को कुछ करना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग्स, अभी ये तुम्हारा लॉग वाला काम आने वाला है। सो 5 लैम्बडा बाहर आ गया,
इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 95/54। अच्छा 95/54 बरोबर था। 272 कितना होता है करीबन? 272 540 होता है ना, तो वेरी बिग नंबर। ओके, अब नेचुरल लॉग है सर, नेचुरल लॉग को पहले log to the base 10 में करना पड़ेगा, log to the base 10। now this is a very interesting procedure, please stay with me। क्या किया जाएगा? log 10 of 95 minus log 10 of 54। ये 54 की जगह 55 रख लो ना, अच्छा रहेगा सर। ओके भाई पीपल, आप मेरे को बताओ, अच्छा 95 में कितने डिजिट्स हैं? 2, तो उसमें से 1 माइनस कर दूं तो 1 पॉइंट। अब ये 9 और यहां पे 0 आए तो 0.95 और 1.00 के बीच में मुझे एग्जैक्टली आधा चाहिए, तो कितना होगा करीबन? भाई ये 9500 और ये log 10 विच इज 1.0000। 9 और 10 के बीच में ही 95 आया था ना, 9.5। तो 0.9500 और 1.00 के बीच में क्या आएगा एग्जैक्टली? 0.9750। यस सर। हाँ, इसीलिए तो इस तरह लिया है। एंड 55 में भी कितने डिजिट? 2, तो -1 पॉइंट। अब 55 कम्स बिटवीन 50 एंड 60, सो 0.6990 मतलब 0.7 और 0.77 के बीच में क्या आएगा? बताओ तो जरा। 0.7374। 7350 वुड बी गुड। ये 7700 है और ये 7000 है। हाँ जी, 10 सेकंड बाद और शिट, तो 50 और 60 के बीच में 0.7350 जैसा लगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 2.3 इंटू, नाउ दिस इज 0, 5 minus 5 is 0, 7 minus 3 is 4, 9 minus 7 is 2, oh 0.24 into 2.3, hey 24 into 2.3, anybody can multiply this? 3 4s are 12, 4 2s are 8 and 1 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 9 6 15, 0.552, so phi lambda is 0.552 and therefore lambda, मेरा lambda आया है 0.552 divided by 5, so that is 0.110 something, 0.11 के आसपास तुम्हारा आंसर आना चाहिए। and this is minute inverse, kindly check, is that true? सर बरोबर है 0.113। my goodness, you couldn't imagine that, you know that ये अगर मैंने 20 किया होता तो करीबन 0.1104 के आसपास कुछ आ जाता, बट डजंट मैटर। सो 0.11 इतने एक्यूरेट हो रहे हो ये लॉग्स को यूज करके। सो आई सजेस्ट यू कीप ऑन डूइंग दिस स्टफ, सो दिस गुड। एंड अब क्या फाइंड कर रहा है अपने को? टी हाफ। अरे टी हाफ बच्चों का खेल है, अच्छा बड़े खेलते हैं, बच्चों का खेल जो बड़े खेलते हैं। 0.11 एंड सेकंड में टी हाफ इज 0.693 by lambda, 0.693 मतलब 0.7, 0.7 by 0.11 and 0.7 by 0.11, मैं 2 zeros ऐसे करके, मैं पॉइंट्स के साथ मस्खरी नहीं करता। 70 by 11 करीबन 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। व्हाट्स इट? 6.13। बूम बूम बूम, 6.1 मिनट। ये सब कुछ मिनट में ही चल रहा था काम काज। सो ये 6.1 मिनट। इज दिस अग्रीएबल पीपल? बरोबर है? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, वुड यू लाइक टू टेक वन मोर न्यूमेरिकल या इट्स टू मच? वुड यू लाइक टू टेक वन मोर? चलेगा एक और। आई एम लुकिंग एट राउंड 2 का 38। प्लीज लुक एट राउंड 2 का 38। ये एक बढ़िया न्यूमेरिकल था। एक्चुअली मेरे पास थोड़े न्यूमेरिकल्स लाया था मैं, जो मैं चाहता था कराऊं, पर ये थोड़ा सा थियोरेटिकल करने में थोड़ा सा टाइम निकल गया। बट नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम्स। आप तब तक थोड़े प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल become powerful at using logs. Please, the most important discovery of today was logs. And आपको ये logs, ये इतने तो याद होने ही चाहिए। आपने देखा हमने बगैर कैलकुलेटर के नेचुरल लॉग्स वगैरह यूज किए और इन्हीं से मैंने फाइंड किया। सो नो बिग डील, ऑलराइट। सो आई होप यू कैन रिमेंबर दीज एटलीस्ट।
Round 2 का 38. What does it say? It says the radioactive isotope X with a half-life of 10 raised to 9 year. So X का half-life 10 raised to 9 year decays to Y, मतलब X Y बन जाता है, which is stable. Okay. A sample of rocks were found to contain both elements X, Y, X is to Y in the ratio, ये number of elements of X, number of Y, 1:7. आपने देखा X वाले X to Y is 1:7. So in the total हमको क्या फाइंड करना है? What is the age of the rocks? Okay. टाइम कितना लगा होगा ये फाइंड करना है. Let, सबसे पहले X ही थे. Let initial number of X atoms be n0. अब at time t equal to 0, at t equal to t, the number of atoms of X, this is how I read it, in the sample is, आपने देखा X is to Y का रेशियो है 1:7. मतलब ये पूरा 8 भाग में डिवाइड करूं तो 8 में से 7 भाग जो है वो Y है और 1 भाग जो है वो X है. सो अगर NO ओरिजिनल पार्टिकल होते तो NO by 8 is the final number of particles. Did you understand यहां से मैं यहां तक कैसे पहुंचा? People, the division, the ratio is 1:7. मतलब 7 plus 1, suppose 8 parts हो, n0 8 parts है, तो उसमें से 1 part is X atoms, 7 parts is Y atoms. So अगर मैं इसी तरह का रेशियो मांगता Y का, तो Y का नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते? 7NO by 8. Yes, sir. बराबर. So 1 part out of 8 parts. So NO by 8 is the idea. And now N is N0 e raised to minus lambda t, and N की जगह अब मैं NO by 8 लगा रहा हूं. I love the number 8. लैम्बडा, अब लैम्बडा छोड़ो ना, अपने पास लैम्बडा नहीं है, वो एंड में जब सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे ना तब डाल देंगे. एनो एनो का कट जाना लाजमी. सो 1/8 इज ई रेज टू माइनस लैम्बडा टी. मैं इसी तरह माइनस को डिच करने वाला हूं, ऊपर उठा दूंगा, तो ई रेज टू लैम्बडा टी इज 8. चलो भाई आ जाओ, टेक लॉग्स. सो लैम्बडा टी इज नेचुरल लॉग 8. सर 80 का है मेरे पास. सो लैम्बडा टी इज नेचुरल लॉग 8, नेचुरल लॉग 2.303 log of 8 to the base 10. We got log 8 right here. And अब लैम्बडा की जगह 0.693 by t half into t is 2.3. How much is log 8? 0.9. And 22.3 into 0.9, अब मैं सब कुछ ये साइड ले रहा हूं, 2.07 करीबन into t half. t half कितना है? 10 raised to 9. ओके, अपॉन 0.693. ये 0.693 को मैं 0.7 ले सकता हूं. ओके, अच्छा, 2.07 करीबन 2.1 या into 10 raised to 9 over 0.7. 7 3s are 21. So करीबन the answer should be 3 into 10 raised to 9 here. Can someone check? So is this the right answer? Yes, it is. So guys, this is how things are done. log वगैरह यूज करके. कमेंट्स में न्यूमेरिकल्स होंगे. I want you all to do that. So until that time, next time नई नई चीजें करेंगे, फिशन फ्यूजन देखेंगे. So till that time, you take care, stay safe, bye bye.